بلدیاتی خبروں کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آپ کو خبر دیں گے کہ سندھ میں بلدیاتی الیکشن کے انعقاد میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے 23 اگست کو اجلاس طلب کر لیا ہے، جبکہ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب سندھ حکومت کی جانب سے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ بلدیاتی حلقہ بندیوں اور بلدیاتی الیکشن سے متعلق صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ سندھ میں بلدیاتی الیکشن کے انعقاد میں تاخیر کا امکان ہے۔ الیکشن کمیشن نے 23 اگست کو اجلاس طلب کر لیا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب سندھ حکومت کی جانب سے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ بلدیاتی حلقہ بندیوں اور بلدیاتی الیکشن سے متعلق صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اور یہاں پر آپ کو خبر دیں، ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں سندھ حکومت بلدیاتی الیکشن کے انعقاد میں مزید تاخیر کی درخواست کرے گی، جبکہ مردم شماری کے متنازع نتائج کی بنیاد پر سندھ حکومت بلدیاتی الیکشن کا انعقاد نہیں چاہتی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں سندھ حکومت بلدیاتی الیکشن کے انعقاد میں مزید تاخیر کی درخواست کرے گی۔ مردم شماری کے متنازع نتائج کی بنیاد پر سندھ حکومت بلدیاتی الیکشن کا انعقاد نہیں چاہتی ہے۔ آپ کو بتائیں ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں سندھ حکومت بلدیاتی الیکشن کے انعقاد میں مزید تاخیر کی درخواست کرے گی۔ مردم شماری کے متنازع نتائج کی بنیاد پر سندھ حکومت بلدیاتی الیکشن کا انعقاد نہیں چاہتی ہے۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندرونی اختلافات دور ہونے لگے ہیں، جبکہ سندھ حکومت کا ڈپٹی کمشنر سے ایڈمنسٹریٹر کا اضافی چارج واپس لینے کا حتمی فیصلہ کیا گیا ہے۔ پیڑ سے تمام اضلاع میں ایڈمنسٹریٹر تعینات کیے جانے کا امکان ہے۔ تمام ترقیاتی کاموں کی نگرانی ڈپٹی کمشنرز ہی کریں گے۔ آپ کو بتائیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندرونی اختلافات دور ہونے لگے ہیں، ایسے میں سندھ حکومت کا ڈپٹی کمشنر سے ایڈمنسٹریٹر کا اضافی چارج واپس لینے کا حتمی فیصلہ سامنے آیا ہے۔ پیر سے تمام اضلاع میں ایڈمنسٹریٹر تعینات کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ تمام ترقیاتی کاموں کی نگرانی ڈپٹی کمشنرز ہی کریں گے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ وفاقی فنڈنگ سے جاری ترقیاتی منصوبے اور دیگر امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی، جبکہ وفاقی فنڈنگ سے جاری ترقیاتی منصوبے مقررہ وقت پر ہی مکمل کرنے کے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ گورنر سندھ نے ہدایت جاری کر دی ہیں، جبکہ SIDCL کے تحت تمام ترقیاتی منصوبوں کے لیے وفاق ہر ممکن تعاون اور فنڈز فراہم کر رہا ہے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کی زیر صدارت گورنر ہاؤس میں اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں وفاقی فنڈنگ سے جاری ترقیاتی منصوبے اور دیگر امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وفاقی فنڈنگ سے جاری ترقیاتی منصوبے مقررہ وقت پر ہی مکمل کرنے کے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ گورنر سندھ نے ہدایت جاری کر دی ہیں، جبکہ SIDCL کے تحت تمام ترقیاتی منصوبوں کے لیے وفاق ہر ممکن تعاون اور فنڈ فراہم کر رہا ہے۔ خبر دیں گے وزیر اعلیٰ سندھ کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت ٹرانس کراچی کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں ریڈ لائن کے سول ورک کا کانٹریکٹ نئے ہفتے میں دے دیا جائے گا، جبکہ ریڈ لائن ایئرپورٹ تا نمائش 26 کلومیٹر پروجیکٹ ہے۔ یلو لائن کا انفراسٹرکچر کورنگی تا نمائش تعمیر کیا جائے گا۔ اجلاس میں آگاہی دی گئی کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو دونوں پروجیکٹس جلد شروع کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت ٹرانس کراچی کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں ریڈ لائن کے سول ورک کا کانٹریکٹ نئے ہفتے میں دیا جائے گا، جبکہ ریڈ لائن ایئرپورٹ تا نمائش 26 کلومیٹر پروجیکٹ ہے۔ یلو لائن کا انفراسٹرکچر کورنگی تا نمائش تعمیر کیا جائے گا، جبکہ اجلاس میں اس تمام صورتحال کی آگاہی دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے دونوں پروجیکٹس جلد شروع کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ سید مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ کراچی میں ٹوٹ پھوٹ اور تفرقہ ختم کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ اب اس جماعت سے امید نہیں کہ وہ مسائل ختم کرے۔ پاکستان کے لیے اس وقت بہت بڑے چیلنجز سامنے آئیں گے۔ پیپلز پارٹی عوام کو کچھ نہیں دے رہی۔ پیپلز پارٹی نے سندھ میں تعلیم کا نظام تباہ کر دیا۔ سندھ حکومت نے مزید 1 ہفتے اسکول بند کرنے کا حکم دے دیا۔ کراچی میں کہاں SOPs پر عمل ہو رہا ہے؟
एहतिसाब अदालत में क्लिफ्टन में प्लॉटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट के रेफरेंस में साबिक सिटी नासिम, मुस्तफा कमाल और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। केस के गवाह ने मुल्जिमान के खिलाफ दस्तावेजात अदालत में पेश किए। मुल्जिमान के वकला और प्रोसिक्यूटर ने तैयारी के लिए मोहलत मांग ली। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफा कमाल का कहना था कि पीपल्स पार्टी तासुब की बुनियाद पर हुकूमत चला रही है। पाकिस्तान में टूट फूट और तफरुका खत्म करने की जरूरत है। इस रीजन के हालात मजीद हसास हो गए हैं। मुझे पीपल्स पार्टी से तो कोई उम्मीद नहीं कि वो बात सुनेगी, मानेगी। वो नस्ली तासुब की बिना पर ये हुकूमत चला रहे हैं। मैं पाकिस्तान की रियासत से, वफाकी हुकूमत से, वफाकी हुकूमत के रियासत के इदारों से मैं कहना चाहता हूं कि भाई ये पीपल्स पार्टी को ये शहर कराची या सूबा सिंध गिरवी में दे दिया क्या? आप कुछ भी नहीं करेंगे? मतलब क्या जब सब तबाही बर्बादी हो जाएगी, जब आकर आप जो मुल्क संभालने आएंगे, जब आप मुल्क संभालेंगे तो ये इनको कौन रोकेगा? हम किसको आवाज लगाएं? कराची से खड़े होकर या सिंध से खड़े होकर, यहां से लेकर लाड़काना तक सिंध के लोग किसको आवाज लगाएं? PSP के सरबराह ने कहा कि पीपल्स पार्टी 40% कोटे पर भी नौकरियां नहीं दे रही। कोरोना के नाम पर दुकानों को बंद किया जा रहा है। लगता है विफाक और रियासत ने सिंध पीपल्स पार्टी को गिरवी में दे दिया है। एक नौकरी जो है वो शहर वालों को नहीं है। जो कोटा सिस्टम था उस कोटे पे भी कोटा नहीं दे रहे। 40% कोटा है शहरों का, उस पे भी जाली डोमिसाइल बनाकर आप जो है वो पैसे लेकर लोगों को नौकरी दे रहे हैं। ले देकर लोग दुकानें खोल लेते थे। ये कोरोना वायरस के नाम पर उन दुकानों को भी तबाह कर दिया गया। अदलिया में आप इंसाफ नहीं दे रहे, पुलिस के पास आप इंसाफ नहीं दे रहे, रोड पर आप कचरा नहीं उठा रहे, पीने का साफ पानी नहीं दे रहे आप, तो कुछ भी ठीक नहीं। ऐसे मौके पे 3 करोड़ की आबादी वाला शहर है, 6 करोड़ की आबादी वाला पूरा सूबा सिंध है। अगर दुश्मन आकर अपने एजेंट तैयार करना चाहे, लोगों को वरगलाना चाहे, तो आपको हजारों लोग मिल जाएंगे आग लगाने के लिए। मुस्तफा कमाल का मजीद कहना था कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त बड़े बड़े चैलेंजेस सामने आ गए हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका और नेटो फोर्सेस को 20 साल बाद शिकस्त हुई। दुश्मन कह रहा है कि तालिबान की कामयाबी में पाकिस्तान का किरदार है। और यहाँ पर आपको खबर दें, म्यूनिसिपल कमिश्नर DMC ईस्ट गुलाम सरवर राहो पोटो ने कहा है कि अयाम अज़ा समेत दीगर जुलूसों में बल्दियाती खदमात की फराहमी के लिए बल्दिया शर्की ताहाल मुतहर्रिक है। दीगर अहम मौक़ों पर भी बल्दियाती खदमात की फराहमी के हवाले से गुरेज नहीं किया जाएगा। आपको बताएं कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स मुबीन शेख, सैयद अजहर हुसैन शाह, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स M&E इम्तियाज़ भुट्टो और दीगर अफसरान के हमरा कामरान चौरंगी गुलिस्तान जौहर पर स्वयं के जुलूस के हवाले से किए जाने वाले बल्दियाती इंतजामात के मुआयने के दौरान म्यूनिसिपल कमिश्नर DMC ईस्ट गुलाम सरवर राहो पोटो ने कहा कि बल्दिया शर्की के महकमा जात खिदमात की फराहमी में हमेशा पेश रहते हैं और कोशिश होती है कि हर मौके पर बल्दियाती खिदमात बेहतर से बेहतर फराहम की जाएं। जुलूस के रूट्स के मुआयने के दौरान उन्होंने अफसरान को बर वक्त बल्दियाती खिदमात की फराहमी पर सराहा। दौरे के दौरान उनके हमरा डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज तौकीर अब्बास, डायरेक्टर पार्क्स अब्दुल गनी, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल राशिद फयाज और दीगर भी मौजूद थे। कराची के शांति नगर मुजाहिद कॉलोनी में भी नाकारा सीवरेज निज़ाम मकीनों की जानों को आ गया है। इलाके की मरकजी सड़क पर अरसे से सीवरेज निज़ाम दरहम बरहम है, जिसकी दुरुस्ती के इक़दाम करने वाला कोई नहीं है। मजीद क्या तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अहमद इसाक से, जो शांति नगर में इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। अहमद इसाक, बताइएगा क्या देख रहे हैं, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुल्क पाकिस्तान को 70% से ज़ायद रेवेन्यू फराहम करके देने वाला शहर कराची का कोई वली वारिस है भी या नहीं, अब हर गुजरते दिन के साथ ये सवाल उठता चला जा रहा है। अगर बात कर ली जाए कराची में मसाइल, तो यकीनी तौर पर होना तो ये चाहिए था कि हर गुजरते दिन के साथ कराची के मसाइल में कमी आती और मसाइल हल किए जाते, लेकिन तमाम मामला उसके बिल्कुल बरक्स है। गोया ऐसा मालूम होता है कि कराची में कोई इंतज़ामिया नाम की चीज़ ही नहीं। जिसकी एक कहावत होती है कि अंधेर नगरी चौपट राज वाला मामला शहर कराची में देखने में आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वाहिब साहिब हैं, तमाम अजला के अंदर डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर तैनात हैं। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि कराची के किसी भी इलाके की अजला की बात कर ली जाए, वहाँ पर मसाइल के अनबार लगे हैं। इस वक्त मैं शहर कराची के जिस मकाम और जिस कोने से रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये कराची ज़िला शर्क़ी का शांति नगर के मुजाहिद कॉलोनी है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुका है और सीवरेज का वो ताफून और गंदा
आलूदा पानी जिसको सीवरेज लाइन के ज़रिए से मरकज़ी नालों के अंदर होना था, वो इस वक्त मरकज़ी सड़क की जीनत बना हुआ है, जिसकी वजह से ना सिर्फ लोगों का यहाँ से गुजरना मुहाल हो चुका है, बल्कि यहाँ के मकीन तरह तरह के वबाई अमराज में भी तेज़ी से मुब्तला होते चले जा रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन ताबिश आपको इस मरकज़ी सड़क की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर सके तो आप आसानी कैमरे की आँख से सड़क का मंजर देख सकते हैं, किस तरीके से पूरी सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे मौजूद है, पूरी सड़क बदतरीन खस्ता हाली की शिकार है। उसी के साथ साथ बात कर ली जाए तो इसके दोनों जानिब हम देख रहे हैं कि तिजारती व कारोबारी लोग यहाँ पर अपना कारोबार करते हैं और गंदगी व गिलाजत का जो यहाँ पर जो ऊपर हम देख रहे हैं कि अनबार लगा है, जोबड़ एक बना हुआ है, इसके अंदर लोग बेचारे मजबूर हो और इस गंदगी के दरमियान वो लोग अपना कारोबार करने पर मजबूर है। बदबू इस वक्त यहाँ पर इतनी ज़्यादा है कि हमारा खड़ा होना तक मुहाल है, मच्छरों की बहुतात है, कोरोना वबा वैसे ही हमारे दरमियान मौजूद है और हुकूमत सिंध की जानिब से ये दर्ज दिया जा रहा है कि सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा जाए। लेकिन इन तमाम सूरत हाल के अंदर, इन तमाम मामले के अंदर सफाई सुथराई को कैसे यकीनी बनाया जाए, ये बात समझ से बालातर है। अगर बात कर ली जाए वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की, तो यकीनी तौर पर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का डोमेन है ये। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अंडर ये काम आता है कि वो ये तमाम मामले को देखे और जिन इलाकों के अंदर सीवरेज की नई लाइन्स की तनसीबी की ज़रूरत है वहाँ पर हंगामी बुनियादों पर सीवरेज की नई लाइन की तनसीब करे। लेकिन हम देख रहे हैं कि सिर्फ इस मकाम पर नहीं बल्कि कराची के पूरे कराची में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने अपने दोनों हाथ खड़े कर रखे हैं और आवाम बेयारो मददगार है, मसीहा की मुंतज़िर है, हुक्काम बाला को दरख्वास्तें दे देकर थक चुकी है, तंग आ चुकी है। अब लोग यकीनी तौर पर मसीहा की मुंतज़िर है, लोग इंतज़ार में है कि खुदारा कोई ऐसा मसीहा उतरे जो उनके मसाइल को हल करे। बुनियादी मसाइल अगर बात कर ली जाए यहाँ की या कराची के वासियों की, तो बुनियादी मसला ये है कि सीवरेज के मफलूज निज़ाम से उनको छुटकारा दिला दिया जाए। जो वहाँ पर सड़कें बदतरीन टूट फूट की शिकार है, वहाँ पर सड़कों के असर मरम्मत को यकीनी बना दिया जाए। उसी के साथ साथ जहाँ पर स्ट्रीट लाइट का फुकदान है, यानी कि रोशनी के माकूल इंतजाम नहीं है, उन एरियाज़ के अंदर रोशनी के माकूल इंतजाम कर दिए जाए, पानी फराहम कर दिया जाए, गैस बिजली फराहम कर दिया जाए। ये चीदा कराची वालों के बुनियादी मसाइल और उनके हुकूक है जो वो चाहते हैं हुक्काम बाला से। यहाँ शांति नगर के मकीन भी मुंतज़िर है हुक्काम बाला के खुदारा इस मरकज़ी सड़क का नोटिस लिया जाए और हंगामी बुनियादों पर इस इलाके के अंदर सीवरेज की नई लाइन्स की तनसीब की जाए, ताकि यहाँ के मकीनों का भी गुजर बसर एक पुरफज़ा और पुरइत्मीनान तरीके से इलाके के अंदर से हो सके। जी बहुत शुक्रिया आमिर इसाक, आपने तफसीलात बताएं। और यहाँ पर आपको बताएं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और जिला इंतजामिया की नाअहली की बदौलत अब शहर की मरकजी सड़कें भी कचरा कुंडियों में तब्दील होना शुरू हो गई हैं, जबकि लियाकताबाद को करीमाबाद से मिलाने वाली मरकजी शाहरा भी बदतरीन कचरे की लपेट में आ गई है, जो इंतजामिया की अदम कारकर्दगी की कलई खोल रही है। लियाकताबाद को करीमाबाद से मिलाने वाली मरकजी सड़क या कचरे का डंपिंग पॉइंट पहचान करना मुश्किल हो गया। मरकजी शाहरा पर न सिर्फ कचरे के अंबार लगे हैं, बल्कि कचरा फैलते फैलते निस्फ से ज्यादा सड़क पर आ पहुंचा है, जिसके बाइस दिन और रात के औकात में ट्रैफिक का जैम होना मामूल बनकर रह गया है। शहरी कहते हैं महीनों गुजर जाते हैं मगर कोई कचरे को उठाने नहीं आता, हमारा सांस लेना तक महाल है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये कचरे की सूरत हाल बिल्कुल नहीं होती सही, ठीक है ना। ये दिन ब दिन मस्जिद, ये पहले आप ये देख रहे हैं कचरा कुंडी वहाँ थी कोने पे, अब ये मस्जिद बढ़ते जा रही है। यहाँ पर हम लोग काम करते हैं, बदबू में कंटिन्यू हम लोग काम करते हैं, कोई सूरत हाल नहीं, ना ही उठता है कचरा और ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है, मगर इस पर गवर्नमेंट की कोई ध्यानदारी नहीं है, ठीक है। ये मस्जिद हमें परेशानी का सामना है, गटर यहाँ पर है, पानी यहाँ पर रहता है, कचरा यहाँ रहता है। अभी देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं मगर इसका कोई रद्द-ओ-बदल नहीं है हमारे लिए। भाई ये जो कचरा कुंडी है ये तकरीबन कोई मैं 4 साल से देख रहा हूँ और यहाँ हर तंजीम के बंदे हैं, हर पार्टी के बंदे हैं ये उठवाने के लिए, पर ये आज तक उठा नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ पे CM तक आए, मुराद अली शाह तक आए, लेकिन ये कचरा नहीं उठाए। लेकिन इस कचरे पे ज़िद बहस चलती है, जो उठाएगा वो पैसे देगा ये उठाने के, कचरा भी उठाएं और पैसे भी दें। और इतनी इधर स्मेल रहती है, यहाँ आना जाना मुश्किल हो जाता है, ये बड़े मामला इधर बहुत ख़राब हैं।
सफाई सुथराई की नाकिस सूरत हाल के बाइस न सिर्फ मलेरिया, टाइफाइड, सांस और जल्दी अमराज में तेजी से इजाफा हो रहा है, बल्कि स्ट्रीट लाइट्स के ना होने से रात के औकात में आए रोज हादसात का होना भी मामूल बन गया है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि खुदारा हंगामी बुनियादों पर मरकजी सड़क से आरजी कुंडी का खात्मा किया जाए ताकि सड़क से बगैर किसी रुकावट के गुजरा जा सके। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। मुल्काती खबरों का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज। बलदियाती खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएं, कराची के दीगर इलाकों की तरह लियाकताबाद 7 नंबर में भी लगे कचरे के अंबार भयानक शक्ल इख्तियार कर गए। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और महकमा सैनिटेशन की नाअहली से पूरा इलाका बदतरीन कचरे की लपेट में आ गया है, जिसे कोई ठिकाने लगाने वाला नहीं। कराची के शहरियों को मोहलिक वायरस से बचाना तो होगा कचरे को ठिकाने लगाना। दीगर इलाकों की तरह लियाकताबाद 7 नंबर में भी पहाड़नुमा कचरे के अंबार लगे हैं, जो कि हर गुजरते दिन के साथ अब भयानक शक्ल इख्तियार कर गए हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और महकमा सैनिटेशन की नाअहली से पूरा इलाका बदतरीन कचरे की लपेट में है। वकील कहते हैं, कोरोना वबा हमारे दरमियान मौजूद है, उसके बावजूद भी बर वक्त कचरे को ठिकाने न लगाना किसी अलमिया से कम नहीं। तक सिंध गवर्नमेंट नहीं सोचे कि इस बारे में कुछ भी नहीं हो सकता। सिंध गवर्नमेंट सोचे कि सब कुछ हो जाएगा, एक रात में हो जाएगा सारा मामला, लेकिन सिंध गवर्नमेंट सोचती नहीं इस बारे में, क्योंकि उन्हें तो अपने मामला सीधे करने। परेशानी है, सारे हर किस्म की परेशानी है, और ये कोरोना एक और वबा फैली हुई है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा परेशान। हम अस्पतालों में क्यों आ रहे हैं, यही वजह है ना। कचरे की ये सूरत हाल है कि भाई ट्रॉलियों की ट्रॉलियाँ भरी पड़ी हैं, कचरा उठता ही नहीं है। कंप्लेन पे कंप्लेन कर चुके हैं, कचरा बिल्कुल भी नहीं उठ रहा है, और हालांकि 3-4 दफ़ा कंप्लेन कर चुके हैं। कोरोना की तो बहुत ही केसेस हो रहे हैं, अल्लाह माफ़ करेगा, बस अल्लाह ही बचा के रखे। अल्लाह बचाने वाला है भाई, कोरोना से बहुत केसेस हो रहे हैं कोरोना के। कचरा गंदगी, अभी आप कूड़े का ढेर देखेंगे पीछे तो आपको खुद हैरत हो जाएगी कि हाँ भाई किस तरह कचरा पड़ा हुआ है। निस्फ से जायद शाहरा पर फैला ये कचरा मच्छरों की अफजाइश के साथ साथ तरह तरह के वबाई अमराज के फैलाव का भी सबब तेजी से बन रहा है, जिस पर हुक्काम बाला समेत जिले इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। यहाँ पर आपको खबर बताएंगे नॉर्थ कराची 11L के पार्क की, जहाँ पर कचरे के ढेर लग गए हैं। पार्क में गंदगी गलाजत के बायस शहरी तफरीह सहूलियात से महरूम हो गए हैं। कराची में एक एक करके तफरीही पार्क कचरे से भरने लगे। शहर कायद के इलाके नॉर्थ कराची 11L में वाक़ पार्क भी कचरे की नजर हो गया। पार्क में गंदगी व गिलाजत के सबब इलाका मकीन तफरीही सहूलियात से महरूम हो गए। शहरी कहते हैं कि तफरीही मकामात हो या सरकारी तालीमी इदारे, हर जगह कचरा मौजूद है। ये एक वक्त में बहुत साफ सुथरा पार्क हुआ करता था। ये सेक्टर 11L है नॉर्थ कराची का, ठीक है। ये मुस्तफ़ा कमाल का जो ज़माना था, उस वक्त हम लोग इधर आए थे, रिहाइश थी 2010 से मैं इधर ही हूँ। उस वक्त बिल्कुल सही वर्क करता था ये पार्क जो है ना, बिल्कुल सही अपनी असल हालत में। उसके बाद बल्दियाती निज़ाम जैसे ख़त्म हुआ, उसके बाद इस पार्क की हालत अब आपके सामने है। ये तकरीबन पार्क जो है तकरीबन 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस पार्क में, लेकिन आए दिन जो है बजाय ये पार्क बच्चों के खेलने के बजाय कूड़ा खाना बना हुआ है। लेकिन कभी कभी इत्तेफाकन सफाई हो जाती है, लेकिन अक्सर ऐसे ही होता है कि लोग अपना कचरा इधर ला के फेंक देते हैं। पार्क में यानी कि कुत्ते वगैरह उनकी बहुतात है, बच्चे बेचारे खेलते हुए डरते हैं कि कोई काट ना ले और कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए। तो बराए मेहरबानी इस पर जो है ना नजरसानी की जाए और जल्द अज जल्द इसकी सफाई का मुकम्मल इंतजाम किया जाए। कराची में बल्दियाती नुमाइंदों और जिले इंतजामिया की गफलत शहरियों को तफरीही सहूलियात से भी महरूम करती जा रही है। शहर में पहले ही आवाम के लिए बनाए जाने वाले पार्क ज़बूहाली का शिकार हो रहे हैं, जबकि अब मुताल्लिका इदारों की नाकिस कारकर्दगी के सबब तफरीही मुकामात भी कचरे से भर रहे हैं, जिन्हें देखने वाला कोई नहीं। कराची में खेलों के ग्राउंड्स भी गंदगी और गलाजत से भर गए हैं। न्यू कराची गौसिया ग्राउंड में कचरे के ढेर लग गए हैं, जहां शहरी खेलों की सरगर्मियों से महरूम हैं। कराची में कचरा साफ करना मुताल्लिका इदारों के लिए मुश्किल हो गया। शहर में गंदगी और गिलाजत से खेलों के ग्राउंड्स भी भर गए। न्यू कराची गौसिया ग्राउंड में कचरे के ढेर ने इलाका मकीनों को खेलों की सरगर्मियों से महरूम कर दिया। इस मौके पर अवाम ने कहा कि ग्राउंड्स कचरे से भरे हैं, जहां कोई खेल नहीं सकता। कोई भी पूछने वाला नहीं है, इंतजामिया आती है, सफाई करके चली जाती है। मुहर्रमुल हराम की कमोबे अभी सफाई हुई है, फिर आप देख सकते हैं कचरा कोई उठाने वाला रोज के मामूल पे नहीं आ रहा। यहाँ पे यही हाल है, चारों तरफ हमारे कचरा ही कचरा है।
बदबू इतनी है कि बच्चे बीमार हो रहे हैं हॉस्पिटलों में। ये मेडिकल लगा हुआ है सामने, उस पर भी आप देख सकते हैं कि यही बीमारी, दवाइयाँ वगैरह यही चल रही है। इसके अलावा कोई भी यहाँ पे पूछने वाला नहीं है। ये सिर्फ अभी उठाया कचरा मोहर्रम में, नहीं तो यहाँ ढेर लगा हुआ था इधर। भाई वो ले जाके हमारे घर के आगे जमा कर दिया सारा। ये सिर्फ ये आगे कर जाते हैं, बिल्कुल इनको कोई ख्याल नहीं है। जो भी आता है यहाँ से बोर्ड लेता है और निकल लेता है, उनको कोई एहसास ख्याल नहीं है मोहल्ले वालों का। यहाँ जगह जगह गंदगी हो जाती है। ये तो सिर्फ अभी ये उठाया गया, नहीं तो ये नहीं उठाते कचरा। वो ये सारा इन्होंने जमा करके वो हमारे घरों के आगे जमा कर दिया सारा ले जाके। आप देख लो, खुद नजर आ रहा है वो ढेर लगा हुआ सब। यहाँ से तो साफ कर दिया, उठाया जाए ना, इसको सफाई की जाए। लोग बीमार हो रहे हैं, मच्छर मक्खियाँ इतनी है, घर में बैठ नहीं सकते अगर लाइट नहीं हो तो। सर सब खेलते हैं, इनको कोई एहसास नहीं है कि वहाँ मस्जिद का गेट है, बिल्कुल करीब है मस्जिद का गेट, वहाँ कचरा वो फेंकते हैं। इल्ले मोहल्ला को सबको परेशानी होती है। एक जगह मखसूस कर दे कि इस जगह पे आपको फेंकना है, इस जगह पे हर हफ्ते को एक गाड़ी आएगी उठा के ले जाएगी। शहर कायद में कचरे का मसला संगीन शक्ल इख्तियार कर चुका है। न शाहराहें साफ सुथरी हैं, न तफरीही मकामात और न ही खेलों के ग्राउंड। शहर में सफाई के नाकिस निजाम के तहत खेलों के ग्राउंड भी कचरे की नजर हो रहे हैं, जहां अवाम के मसाइल पर तवज्जो देने को कोई बल्दियाती नुमाइंदा तैयार नहीं। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची के इलाके सुरजानी टाउन से आपको खबर दें, जहां कचरे और सीवरेज से पानी भर गया है, जिसके बाइस शहरी मुश्किलात का सामना करने लगे। मुल्क का सबसे बड़ा शहर इंतजामिया की गैर संजीदगी के सबब कचरे के ढेर में तब्दील हो गया। कराची के तबाहाल इलाके सुरजानी टाउन की मुख्तलिफ मुकामात पर कचरे के ढेर और सीवरेज का पानी जमा हो गया। इंतजामिया की गफलत के बाइस सुरजानी के ग्राउंड्स और ग्रीन बेल्ट भी कचरे से भर गए। इलाके में बदबू और ताफुन से परेशान शहरियों का कहना था कि जहाँ भी नजरें दौड़ाएं हमें कचरा ही नजर आता है, जिसको ठिकाने लगाने में इंतजामिया मुकम्मल नाकाम है। भाई कचरे के ढेर तो आपको यकीन माने, अब यहाँ पे भी खड़ा हूँ, बहुत स्मेल आ रही है मुझे। प्लस ये है कि अभी जब से ये हुकूमत आई है तो कोई काम ही नहीं हो रहा। 4 के अल्लाह करके बनी, अब आगे जाके रोड फिर वो पहले वाले टूट गए सारे। फंड सारे पीपुल्स पार्टी के हाथ में, वो देती नहीं है तो कहाँ से काम करेगा। वो तो चाहती नहीं है कराची बने, वो तो ज़्यादा मुंडाड़ो बन जाइए, हर आदमी बेरोजगार हो जाए। यहाँ पर नौजवान तबके की आप हालत देखें क्या हाल हो रहा है। यानी बेचारे बर्गर बेच रहे हैं, आप सामने का ठेले देख रहे हैं, तो यानी वो ग्रेजुएशन किया हुआ लोगों ने। बजट तो बस पता नजर ही नहीं आता कहाँ गया, जमीन में दफन हो गया, कब्रिस्तानों में लग गया होगा, और क्या होगा। इधर कौन लगाता है फंड, और क्या गोडो देहातों में लगा देते हैं। सिंध में होता है, तालीम का निज़ाम बेड़ा गर्क कर दिया, स्कूलों का निज़ाम बेड़ा गर्क कर दिया। पानी इधर आता नहीं है, लोग बोरिंग कर करके पीने के लिए इस काबिल हो गए। बाकी मीठा पानी मिलता नहीं है लोगों को, टैंकर माफिया बनी हुई है। सब लोगों का जो कराची से बाहर आए हैं वो कराची वालों पे जुल्म करने का काम है इनका, और कोई काम नहीं है इन लोगों का। सुरजानी टाउन में सफाई सुथराई के नाकस इंतजामात के बाइस वबाई अमराज भी तेजी से फैल रहे हैं। इस मौके पर शहरियों का मजीद कहना था कि हुकूमत मुताल्लिका इदारों को सुरजानी टाउन में फौरी सफाई सुथराई के अहकामात जारी करे। कराची के जिले गरबी से आपको खबर दें, जहां पर सुरजानी टाउन की शाहराहों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। खस्ता हाल शाहरा से हादसात का सबब बनने लगी है। जिला गरबी बल्दियाती मसाइल से भर गया। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के इलाके सुरजानी टाउन में शाहराहों पर बड़े बड़े खड्डे शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा करने लगे, जहां शाहराहों से गुजरना मुसाफिरों के लिए वबाल बन गया। मुसाफिर कहते हैं कि हर इलाके की सड़कें टूटी हुई हैं, गाड़ियां खराब हो रही हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं। जगह जगह से सारी सड़कें टूटी हुई हैं, जाने आने में इतना मसला आता है। हर जगह में पानी, सड़कें टूटी हैं, पानी खड़ा हुआ है, जाने में इतनी परेशानी हो रही है, घर से निकल नहीं सकते, दरवाजे के आगे इतना पानी कचरा है। हुकूमत से अपील की है, अभी तक कैसा कुछ भी नहीं इंतजाम हुआ, सबका सब वैसे ही रखा हुआ पड़ा हुआ है। खराब है, सड़कें खराब है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जिससे देखें इतनी दवाइयाँ हमें लेनी पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो पेंट कलर होता है हम जानते हैं, हमारे ये देखते हैं, पूछते हैं, हम यहाँ से आके पछताते हैं, नहीं तो हम अच्छा खासा अच्छी जगह रहते थे। मेरे भाई क्या करें, यहाँ पे सारे कचरा गंदी गंदे यहाँ से अपने हाथ से उठाते हैं, अपने हाथ से फेंक रहे हैं, अपने हाथ से उठा के अपने हाथ से फेंक रहे हैं यहाँ पे सारा कचरा, और क्या करता है। सारे लोग देख रहे हैं कि जो ना सड़कें बिल्कुल बेकार हो गई हैं, अभी बनाई भी जा रही हैं, तो वो जो ना उसमें माल सही नहीं लग रहा, वो तो बिल्कुल देखने में नजर आ रहा है, तो माल सही नहीं लग रहा है। ये बारिश के अंदर मेरी ये वो है ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है गलत हो जाए कि बारिश का सीजन जाएगा, आप देख लेंगे सड़कें जो है ना दोबारा उसी जगह पर आ जाएंगे जहाँ। शाहराहों पर बड़े बड़े खड्डे न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर करते हैं, बल्कि ये मुख्तलिफ हादसात का भी बाइस बनते हैं, जहाँ शाहराहों की खस्ता हाली पर न हुकूमत जागती है और न ही जिला इंतजामिया को होश आता है।
कराची के इलाके गोलीमार जहांगीर रोड पर कचरे ने शहरियों की जिंदगियां अजीरन कर दी हैं, जिसके बायस शाहरा पर मौजूद कचरे से गुजरना नमाजियों के लिए महाल हो गया है। रोशनियों का शहर, कचरे की नजर, इंतजामिया की नाअहली और गैर संजीदगी बनी शहर की तबाही का सामान। कराची के इलाके गोलीमार जहांगीर रोड पर जगह जगह कचरा शहरियों के लिए परेशानियों का सबब बन गया। शाहराह पर मस्जिद के बाहर गंदगी के ढेर से गुजरना नमाजियों के लिए मुहाल हो गया। अहले इलाका कहते हैं कि नमाज पढ़ने जाने के लिए भी बदबूज़दा माहौल से गुजरना पड़ता है। ये तो कई सालों से यहाँ पर कचरा यहाँ पे डाल रहे हैं लोग ला के, और इतना फैला देते हैं कि रोड बंद हो जाता है, और ताफून बदबू इतनी होती है, मक्खियाँ इतनी होती हैं कि जो बीमारी का बाइस बन रही हैं। कचरा यहाँ काफ़ी दिनों से जमा है, कोई तवज्जो नहीं दे रहा। साथ में मस्जिद भी है, मदरसा भी है, और तकरीबन लोग नमाज़ी पढ़ने आते हैं और कचरे का ढेर बना हुआ है, एलर्जी इतनी और हो रही है। तो इस पर कम से कम गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए कि ये चीज़ें साफ़ करें। ये हमारा शहर है, हम अपने शहर को साफ़ करके रखें। हमने यहाँ रहना है, हमने ये बनाया, ये पाकिस्तान है, यहाँ रहना है, और इसको ज़रा साफ करके रखें। ये गवर्नमेंट ज़रा थोड़ी सी मतलब इस पे तवज्जो दे तो इंशाल्लाह सारे काम हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं। सिंध हुकूमत की तरह सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अथॉरिटी और जिला इंतजामिया के दावे भी धरे के धरे रह गए, जबकि कराची के बेशतर इलाकों में मौजूद गंदगी व गिलाजत के ढेर अवाम का जीना मुहाल कर रहे हैं, जहाँ हफ्तों हफ्तों तक सफाई सुथराई का कोई निजाम नहीं। कराची के शादमान टाउन का सेक्टर 14B भी सियासत की नजर हो गया। बल्दिया बस्ती, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, हल्का MNA और MPA समेत मुतालिका महकमे मिलकर भी सेक्टर 14B की हालत इज़ार दुरुस्त न कर सकी, जिसके बायस पूरा इलाका कचरे की अंबार समेत सीवरेज जैसे गंभीर मसाइल में घिरा हुआ है। तबाह हाल सड़क, बहता सीवरेज, उबलते गटर और सीवरेज का मफलूज निजाम, ये है कराची का शादमान, जो कि सियासत की नजर होकर आज तबाही के दहाने पर है। कोई मसला ऐसा नहीं जो कि शादमान टाउन के सेंटर 14B में मौजूद ना हो। इलाके में बढ़ता हुआ कचरा और बहता सीवरेज इलाके मकीनों की जानों को आ पहुंचा है। इलाके मकीन कहते हैं पूरा सेक्टर सियासत की नजर है, चूँकि इस सेक्टर में MQM के साबिक MNA की रिहाइशगाह है। ऐसी कैसे पड़ा हुआ कोई नहीं आता देखने के लिए। पहले जो KMC के जो हुक्मरान थे वो आते थे, कचरा उठाते थे डब्बे में। अब ये कचरा फेंका हुआ है ना, ये ऐसी पड़ा रहेगा, कोई भी नहीं आएगा। कोई हुकूमत नाम की चीज नजर नहीं आ रही है, यकीन करें आप, लगता ही नहीं है कि कराची है ये अभी से नहीं। आप देखें बल्दियात का जो सिलसिला रहा, पिछड़ा टन जो है वसीम अख्तर साहब का रहा है, एक टके का इधर काम नहीं हुआ है। कोई मामला जो जिस हाल में है उसी हाल में। PTI की गवर्नमेंट आई, 3 साल होने को आ गए, लेकिन कोई मामला ऐसा नहीं है कि ये जो है हल तलब हो। ये हमारी बाबर अहमद मस्जिद है, ये हमें आदत हो गई है, हमें फलांग के जाने की आदत हो गई है। इशा में कम लोग आते हैं क्योंकि अंधेरे में काफ़ी लोगों को नज़र नहीं आता, गिर जाते हैं। फजर में काफ़ी लोग गिर जाते हैं जो आते नहीं घरों से। ये 2 नमाजें ऐसी होती हैं मस्जिद में आके आप देख लें, सब आपके सामने, और ये कभी भी नहीं होता है। ये कचरा उठता है हर 6 महीने बाद। ये पॉलिटिकल बेस है क्या है वल्लाह आलम पता नहीं है। 6 महीने बाद ये कचरा उठता है, 6 महीने बाद सफाई होती है। अब वो 6 महीने बाद भी नहीं होती है। इंतजामिया नाम की यहाँ पे हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, और मुश्किलात मतलब एक बड़ा छोटा सा वर्ड मैं कहूँगी उसके लिए। बच्चे रोज़ यहाँ पे खेल रहे होते हैं, मस्जिद है, अभी बकरीद गुजरी है, नहायत किस्म का कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ होता था, लेकिन कोई भी यहाँ पे कोई इदारा जो है एक्टिव नहीं था। गंदगी और गिलाजत के ढेरों के बाइस इलाका मकीन तरह तरह के वबाई अमराज में तेजी से मुब्तला हो रहे हैं। अब जरूरत इस अमर की है कि हुक्काम बाला बिला तफरीक अवामी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करके अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करें और अवाम से अपनी मोहब्बत का सबूत दें। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।